A very warm good morning to all present here, and thank you for joining us for this session on the life story of an entrepreneur. I'm Ishika Pradhan, the host for today's event. So, before moving further, I would like to give a small introduction of our eCell. So, our eFame, our eCell iFame CDGI is the eCell of Chamili Devi Group of Institutions. The main aim of our e-cell is to promote entrepreneurship among young generation and to build a startup ecosystem in our society. Our e-cell has also built a community of startup enthusiasts across different social media platforms with over 500 plus enthusiasts. So, Mm. after conducting some sessions on basics of entrepreneurship and how to start a startup. So we are back with another session, and here we will be interacting with our guest speaker and how he started his own entrepreneurship journey. So, on the behalf of our eCell, it is my pleasure to introduce you all to our guest speaker, who is the co-founder and director of Bizbit Research and Consulting and Logistical Solutions. So please welcome Mr. Amol Meshram. Over to you, Amol sir. Amol, unmute yourself. Hello, can you hear me? Yes, sir. Please continue. Yes, sir. Yeah. So hi everyone. How are you doing? I hope everybody is good and great, and it's a happy new year for everyone. Yes, sir. Hello. Yes, Okay. definitely. So just to introduce myself, my name is Amol Mishram. I'm the co-founder of Business Research and Consulting as well as Logistical Solution LLP. Both are the companies are situated in Indore itself, and my new office is situated in Atulya IT Park, Indrapuri. If you have seen the places, it's the IT Park near Crystal IT Park. Hello. Yes, sir. Most of the students are from Indore only, so they must be knowing I guess Indrapuri. they must be Yes, sir. knowing, right? Yes, sir. So it's a brief introduction of myself. I just done graduation in engineering and then MBA from IMS TAVV. So I've done MBA in finance, and I've just like in 2017 I founded my company, which is Bizfit Research and Consulting. It's basically a market research firm. So what we do is we create research reports in different topics, and then we sell these reports to our clients from different industry verticals from all around the world. So just to start my presentation, I'll just share my screen. Is everyone can see the screen? Yes, sir. Your screen is visible. Okay, right, great. So I guess 3 years back, जब मैंने MBA किया था IMS से, so I didn't have any life goal to what to do next. I was just going with the flow कि अभी MBA किया है, and then I'll just find out a job and then I'll start working in a company and then I'll figure out कि अभी आगे करना क्या है. So जब मैंने MBA किया, so you know uh, there was nothing with me to do. मेरा प्लेसमेंट भी नहीं हुआ था उस टाइम पे. सो जब मैंने ज्वाइन की कंपनी विच इज ओकेम्स रिसर्च, सो आई फाइंड आउट अ होल इंडस्ट्री ऑफ मार्केट रिसर्च. सो इट्स अ different, altogether a different vertical of industry. mm, Yes, sir. okay, just figure it out. Okay, it's working. So just to tell you more about my company, what I do is we create market research reports. So इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं थोड़ा सा आपको इजी आपको बताता हूँ सॉल्यूशन क्या होता है बेसिकली कि लेट्स से इफ यू हैव सीन अ 20 रुपी कोक बॉटल. आई गेस एवरी सबने देखी होगी 20 रुपए वाली कोक की बॉटल. तो उसके लॉन्च के पीछे की एक स्टोरी है. बेसिकली जब कोक अराउंड 2016 और 17 में उनके हाफ लीटर की बॉटल्स मार्केट में अवेलेबल थी एंड देन देयर वाज अ 2.5 लीटर बॉटल अवेलेबल थी मार्केट में. सो उनका जो सेल्स फिगर था दैट वाज ग्रोइंग इन अ नेगेटिव सीएजीआर around point minus 7 0.0 minus 7 to 0.7 अराउंड. तो उन लोगों ने एक मार्केट रिसर्च स्टडी के लिए इनिशिएट किया बेसिकली.
उसमें उनने देयर वाज अ कंपनी मैकेंजी, आई गेस मैकेंजी में मेरा एक फ्रेंड था, उसने मुझे बताया कि वी डिड अ होल कंट्री एनालिसिस फ्रॉम डिफरेंट बस स्टैंड्स एंड रेलवे स्टेशंस, और वहाँ पे कस्टमर का डेटा उन्होंने फिगर आउट किया कि कस्टमर्स को रिक्वायरमेंट क्या है बेसिकली, जस्ट टू टेक दिस बॉटल्स, to द सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स टू परचेज, एंड देन उनको वो कैसे कंज्यूम करना है बेसिकली। तो वो स्टडी उन्होंने पूरी एनालिसिस करी, उसके बाद उनको पता चला कि कस्टमर्स ओनली वांट कि उनको एक छोटी बॉटल चाहिए जिसको वो कैरी कर सके, क्योंकि उस टाइम पे आई थिंक एक कांच की बॉटल चलती थी जिसको उनको रिटर्न करना होता था। तो दैट वाज अ वेरी टीडियस टास्क फॉर कस्टमर। तो उन लोगों ने पूरा एक रिस्पॉन्स क्रिएट किया फॉर द कंपनी, और आई गेस आफ्टर दिस होल स्टडी कंपनी ने डिसाइड किया कि उनको एक छोटा पैकेज भी ऑफर करना चाहिए टू कस्टमर्स, और विच वाज अ रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट आई थिंक उनके लिए। तो ये जो बेसिकली उन्होंने स्टडी करी, दैट इज मार्केट रिसर्च। सो दैट इज व्हाट वी डू, आवर इंडस्ट्री डू। और आई गेस इट्स अ very tedious task. I would say it's very important task for different companies, इसलिए उनको वो चीज करनी पड़ती है। So to figure it out in a single line, what we do is uh, actually it's the quotation, a proverb from different a novel I've just read. Nobody knows what I do until I don't do it, because ये जो हम काम करते हैं बेसिकली अपनी कंपनी में, ये अभी किसी को समझ में आता कब है, बट हम जब तक अगर वो नहीं करते हैं तो ये बहुत सारे जो प्रोडक्ट रेवोल्यूशन है, नॉलेज है, ये चीज फिगर इट आउट हो नहीं पाती है। जब मैंने अपना एमबीए किया था तो मुझे ऐसा लगता था कि स्टार्टअप करना इज़ अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड टास्क। उसमें होता क्या है कि आप यूजुअली कॉलेज ज्वाइन करते हो, फिर आपको कोई आइडिया क्लिक होता है, एंड देन आप आइडिया के लिए से कैपिटल रेज करते हो, और उसके बाद आपको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिल जाता है, आप उसको रन करते हो, एंड इट्स अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस ऑल्सो। सो ये जो आपको एक चार्ट दिख रहा है सामने, बेसिकली ये मुझे आइडिया था कि स्टार्टअप्स ऐसे होते होंगे। बट आफ्टर ऑल आई गेस लास्ट 4 or 5 years मुझे ये समझ में आया कि इट्स अ वेरी डिफरेंट व्हाट आई अज्यूम्ड। सो आई गेस जब मुझे पता चला कि सिचुएशन कैसी होने वाली है, सो इट्स लाइक दिस ओनली, कि मुझे नहीं पता था कि ये ऐसा होता है। देन आई फिगर्ड आउट कि बेसिकली जो मैंने एक्सपीरियंस किया लास्ट के 3-4 years में, मेरी जो लाइफ लाइन रही है, जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, वो ऐसे जिगजैग फॉर्म में चले बेसिकली। कि जब मैंने सोचा कि मैं अपनी कंपनी फॉर्म करूँगा, सो आई वाज़ वेरी एक्साइटेड। बट आप ये अगर आप कैसे देख सकते हो जो नीचे-नीचे के पॉइंट्स है कि दिस वाज़ वेरी हार्ड, आई फेल्ट वेरी मेस्ड अप, और ये जो आपको ज़िगज़ैग दिख रहा है, बेसिकली मेरी पूरी लाइफ ऐसे ही चली है। मतलब पिछले के अगर 3-4 साल में आपको बताऊँ भी, तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था कि मैंने कंपनी खोली और वो चल रही है और उसमें स्ट्रेट रनिंग, मतलब उसमें फंडिंग मिल रही है। फंडिंग तो मुझे कभी मिली भी नहीं आज तक। मैंने आई थिंक जब मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी, तो मेरे पास अराउंड कुछ 60-70 थाउजेंड्स थे, और उससे मैंने आई गेस स्टार्टिंग के 6 or 7 months खुद को सर्वाइव किया था। तो वो बहुत ही टीडियस टाइम था मेरे लिए। उसके बाद मेरी सारी जो भी एक्सपीरियंसेस थे, मैंने फर्स्ट जो सेल हुई मेरी क्लाइंट्स के साथ, एंड देन उसके बाद जो मेरा टर्नओवर रहा ईयर ऑन ईयर बेसिस, सो वो इतना ग्रेजुअली और एक्सपोनेंशियली बढ़ा कि जो आपको जिगजैग्स के पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये सारे वैसे मेरे लिए ही थे कि मैंने जो एक्सपीरियंस किया कि बेसिकली कभी भी आपको लाइफ में स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सपीरियंस नहीं होने वाला है। आपको बहुत सारे ऐसे अप्स एंड डाउन्स फेस करने पड़ेंगे। सो आई गेस दैट्स इट। मैंने उसके बाद जो पूरा एक्सपीरियंस किया उसको मैंने ऐसे समराइज फॉर्म में आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है कि हाउ टू थिंक लाइक एन एंटरप्रेन्योर। मतलब जो मुझे भी लगता था कि अगर कोई एंटरप्रेन्योर होता है तो वो कैसे सोचता होगा और मैं कैसे सोचता हूँ, तो ये जो दोनों चीज़ें होती है, ये मैंने बहुत ही कंपैरेटिव एनालिसिस खुद से कर रखा है अभी आपको बताने के लिए। सो अगर आप लोगों के मन में भी सवाल आता होगा कि हाउ टू थिंक लाइक एन एंटरप्रेन्योर, तो इट्स नॉट अ वेरी साइंटिफिक थिंग कि किसी एंटरप्रेन्योर के मन में कुछ और होता है एंड देन ऑर्डिनरी पीपल के मन में कुछ और होता है। तो आई गेस जो मुझे समझ में आया, मैंने एक पूरा कंपैरेटिव स्टडी कर रखी है ऑलरेडी। सो ये बेसिकली अ साइंटिफिक स्टडी थी, किसी कॉलेज, आई थिंक लंदन लंदन के किसी कॉलेज ने कर रखी है। उसमें
उन लोगों ने जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके माइंड के कुछ फैक्ट्स निकाले, कुछ पैरामीटर्स निकाले कि उनके माइंड में इतना डेटा, इतना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं कि दे आर सेल्फ डायरेक्टेड, एक्शन ओरिएंटेड, हाईली एंगेज्ड, हाईली रिजिलिएंट। तो बेसिकली ये उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स निकाले कि ऐसे-ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि एक एंटरप्रेन्योर के माइंड में होते हैं। बट जो मुझे समझ में आया, व्हिच इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग, मतलब जो मैंने अपने 5 सालों में देखा है, अपने जो मेरे दूसरे एंटरप्रेन्योर फ्रेंड्स हैं उनसे देखा है, या बेसिकली जो भी दुनिया में और भी स्टार्टअप्स खुले, उनके मन में अगर मैंने कभी उनका जो माइंड एनालिसिस कर रहा है मैंने जो, उसके हिसाब से मुझे कुछ और ही चीज़ें पता चली। सो आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट स्लाइड। सी, दिस इज़ अ वेरी ऑर्डिनरी माइंड जिसमें कोई भी ह्यूमन बीइंग अपने डिसीजन लेता है टू टू गेट अ जॉब और टू ओपन अ कंपनी और टू ओपन अ शॉप और बिजनेस और एनीथिंग। सो इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड माइंड। ये मतलब बेसिकली बहुत मैंने सिंप्लीफाई तरीके से आपको समझा रहा हूँ। जस्ट होल्ड ऑन। ओके, सो ये जो बेसिकली माइंड होता है ये एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का होता है कि उसमें रैशनल डिसीजन मेकर होते हैं। मतलब एक उसका जो पार्ट होता है दैट इज रैशनल डिसीजन मेकर। बट जो मैंने एनालिसिस किया ना, हर किसी के माइंड में एक पार्ट ये भी होता है, देयर इज अ माइंड ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। उसके माइंड में एक दूसरा मंकी भी होता है जो उसको बहुत सारे अनोखे काम करवाता है बेसिकली। सो आई जस्ट एक्सप्लेन यू द नेक्स्ट स्लाइड कि आगे वो एग्जैक्टली करवाता क्या है। अगर आप लोग ये इमेज देख पा रहे हैं, बेसिकली दोनों इमेज, इसमें आपको कुछ स्पेशल दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Quite sir. So what you can figure it out in the both images? अनोखे काम. Anokhe as in what? it's quite weird. We usually don't do this. राइट, बट दे फाइंड आउट कि अगर उनको कुछ एक टास्क परफॉर्म करना है तो उसका इजीएस्ट सॉल्यूशन क्या है जो उनके पास अवेलेबल है बेसिकली। सो दे फाइंड आउट एज अ जुगाड़ ओनली। राइट, एवरीबॉडी नो अबाउट दिस टर्म? Yes, sir. Yes, sir. राइट, सो इन लोगों ने बेसिकली यही किया ना कि जो चीज़ें रिसोर्सेज पास अवेलेबल थे उन्हें उसको बहुत ही डिफरेंट वे में यूज़ किया, इनोवेटिव वे में यूज़ किया। सो दिस इज व्हाट समथिंग इन अ एंटरप्रेन्योर्स माइंड इट्स ऑलरेडी देयर। सो ये जो एक फैक्ट है कि हर किसी के मन में वो चीज़ें कम होती हैं, बट एक एंटरप्रेन्योर के माइंड में वो चीज़ें ज़्यादा होती है, जस्ट टू फाइंड आउट अ डिफरेंट सॉल्यूशन। तो अगर आप किसी साइंटिफिक स्टडी को अवॉइड भी करें, सॉरी, राइट, तो अगर आप किसी साइंटिफिक स्टडी को अवॉइड भी करें तो जो ये जुगाड़ वाला मंकी होता है ये एंटरप्रेन्योर्स के माइंड में थोड़ा ज़्यादा होता है। बेसिकली मैंने अभी रिसेंटली खुद को भी एनालिसिस अगर किया तो आई गेस एक हफ्ते पहले मेरा जो फ्लैट है उसमें लैश लॉक था, जो आई थिंक बाहर से लॉक हो जाता है, आप लोगों को पता होगा। वो बाहर से लॉक हो गया था और मैं घर के बाहर मतलब चला गया था, कीज़ सारी अंदर थी। तो आई गेस अ नॉर्मल पर्सन वुड डू इज़ कि वो किसी को कॉल करता टू open the gate or to make a key. But what I was doing, I was just searching YouTube on, how to open a latch lock using tools. तो मैंने कुछ तो भी उसमें यूट्यूब में सर्च किया, बहुत सारे वीडियोस देखे, मैंने अपना एक एटीएम कार्ड बर्बाद किया उस वीडियो की वजह से, बट आई समहाउ मैनेज टू ओपन द गेट। सो दिस वाज समथिंग कि हर किसी के माइंड में नहीं होता, बट एज अ एंटरप्रेन्योर जिसको भी ऐसा होता है कि बेसिकली इसको आप आई थिंक कीड़ा बोल सकते हो, डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग बोल सकते हो, कि मेरा पहला रिएक्शन था कि मैं उसको यूट्यूब खोल के देखूं कि हाउ टू ओपन दिस लैश लॉक। सो आई डिड ओपन दिस, बट मेरा एक एटीएम कार्ड बर्बाद हो गया। बट इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस कि मैंने वो चीज़ सीख ली कि हाउ टू ओपन ए लैश लॉक यूजिंग एटीएम कार्ड। सो आई गेस दिस वाज समथिंग इन अ एंटरप्रेन्योर्स माइंड। अगर आप लोगों ने खुद को भी कभी नोटिस किया हो कि आप चीज़ों को कैसे रैशनलाइज करते हो, कैसे उसके बारे में आई गेस प्रोसेस करते हो आपके थॉट्स को, तो ये जो एक डिफरेंट पार्ट होता है, इट्स काइंड ऑफ अ मंकी बोल दो आप, या आपके माइंड का कीड़ा बोल दो। ये चीज़ें आपको हेल्प करती है कि आपके जो डिफरेंट वे है किसी चीज़ को सोचने के लिए, आप उनको यूज़ कर सकते हो।
सो मेरी जो लाइफ के एक्सपीरियंस थे तो वो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आई थिंक मैं पूरे बता भी नहीं पा रहा हूँ, बट बेसिकली जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो, अगर आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि एंटरप्रेन्योर बनने के बाद वो लाइफ बहुत हैपनिंग है, बहुत फन है और बहुत ऐसा आपको अमेजिंग काम करने मिलेगा, तो ये चीज़ आपको आई थिंक अभी से नोट डाउन कर लेनी चाहिए कि कुछ ऐसा अमेजिंग तो नहीं होता। उल्टा आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है चीज़ों के बीच में। हाँ, आई थिंक आपको ऐसा लगता होगा कि छुट्टी के लिए कभी इशू नहीं होते होंगे, कभी भी छुट्टी ले सकते हो, कभी भी आप चीज़ों को मिस आउट कर सकते हो, बट ऐसा होता नहीं है। यूजुअली मैं अगर कहीं पे भी हूँ, मतलब मेरा 24/7 एक लैपटॉप साथ में होना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे सारे काम ऐसे होते हैं कि ऑड टाइमिंग में बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। अभी मैंने रिसेंटली मेरी जो पार्टनर है उसकी शादी में गया था, तो वहाँ पे मुझे उसके ऐसे फेरों के बीच में आई हैव टू वर्क टू आई आई डिड हैव टू वर्क इन अ क्लाइंट्स प्रोजेक्ट। तो मैं वहाँ पे होने के बाद भी अवेलेबल नहीं था फॉर अ होल डे। आई थिंक 6 और 7 आवर्स के लिए आई विल हैव टू टेक अ कॉल। तो मैंने एक रूम लिया, मैंने वहाँ पे पूरा कॉल अटेंड किया। वो दिन मेरा पूरा वेस्ट था। तो मैं अगर ऑफ़िस में नहीं हूँ, तो भी मुझे 24/7 अवेलेबल होना पड़ता है अपनी चीज़ों के लिए। तो अगर आप लोग को कभी लगता होगा कि एंटरप्रेन्योर बनने के बाद वहाँ पे बहुत फन है या वो चीज़ें बहुत हैपनिंग है, तो ऐसा होता नहीं है बेसिकली। आपको अगर ऐसा लगता है कि जॉब वर्सेस एंटरप्रेन्योरशिप, अगर आप ऐसे सोचने वाले हो, तो ये दोनों ही चीज़ें के अपने प्रोस एंड कॉन्स होते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप के भी बहुत सारे अपने प्रोस एंड कॉन्स निकलेंगे, बट आपका पैशन होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। तो जो मैं अभी कर रहा हूँ वो मेरा पैशन है, मार्केट रिसर्च इज़ मेरा पैशन है। तो दैट इज़ व्हाट आई डू, और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी इंडस्ट्री है उसमें जो मुझे कॉन्स भी फेस करने पड़ रहे हैं, वो मैं बहुत ईज़िली फेस कर लेता हूँ। लास्टली आई थिंक मैं आपको बस एक कंक्लूजन बता सकता हूँ कि जो ये कर्म करो फल की चिंता मत करो इज़ अ फेमस सेइंग ऑफ भगवद गीता। तो इसका ना मैंने कस्टमाइज़ वर्ज़न निकाला बेसिकली। आप कर्म तो करते हो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ योर एनी फ्रूट, बट जो ऑलरेडी आपको मिला है ना, आपको उसको एन्जॉय करना चाहिए बेसिकली। अगर आप किसी जॉब में भी हो और इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में भी कर रहे हो, तो जो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है, आपको उसको एन्जॉय करना भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि टाइम के साथ अगर आप चीज़ों को बहुत वो करोगे कि मैं वेट कर रहा हूँ, लेट्स से कि मेरा एक फ्रेंड है, मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है बेसिकली, मैं आपको अगर उसकी कहानी बताऊँ, तो वो यूजुअली जब हम कुछ भी डिस्कस करते हैं, फाइनेंशियल गोल्स भी डिस्कस करते हैं हम, अगर कि उसे क्या खरीदना है या उसे कैसा घर चाहिए या मुझे कैसा घर चाहिए। सो एवरी टाइम वी डिस्कस अबाउट दिस ऑल दीज़ थिंग्स, तो वो एंड अप हमेशा ऐसे ही होती है कि उसको एक बहुत बड़ा घर लेना है, उसको एक बहुत बड़ी कार लेनी है, तो वो हमेशा किसी बड़े की एक्सपेक्टेशन में बैठा रहता है और जो उसके पास ऑलरेडी है वो उसको एन्जॉय नहीं करता। तो मैं उसको हमेशा समझाता हूँ कि देख, अभी जो पॉसिबल है, जो अभी तेरे हाथ में है, तो उसको एन्जॉय करना मत भूल। अदरवाइज़ होगा क्या कि कुछ तू कुछ ज़्यादा वेट कर जाएगा और चीज़ें जो हाथ में हैं वो भी निकल जाएँगी। उसको इस हिसाब से सोचना चाहिए कि जो चीज़ें आपके पास ऑलरेडी हैं, आप उसको एन्जॉय भी करते रहो बेसिकली। सो आई गेस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, मेरी स्टोरी एंड ऑल। अभी तन्वी, देन आई गेस इशिता। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन्स, so you can directly ask me. Amol, Sure, sir. हाँ, Amol, या I सर। think you should also let them know कि how MBA help you with the entrepreneurship and all. सो बेसिकली मेरा तो Yeah, पूरा how एमबीए MBA मेरे was this? जो बिजनेस में काम आया है। मैंने जो एमबीए में पढ़ा है, ऑल काइंड ऑफ कॉस्ट ग्रॉस मार्जिन एनालिसिस, टाइम स्केल एनालिसिस, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, बहुत सारे पैरामीटर्स है, बहुत सारे टॉपिक थे स्टडी के जो हमने पढ़े एमबीए में। बेसिकली मेरे फाइनेंस में तो जो मैंने पढ़ा है, मेरा सारा कुछ काम आया है। मेरी पूरी इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट दिस मार्केट रिसर्च ओनली। कि मैंने आई थिंक एक टाइम स्केल एनालिसिस होता है, आप लोगों को शायद अभी टॉपिक आएगा कभी जीवन में, मतलब क्या आएगा सब्जेक्ट्स में आएगा वो। तो टाइम स्केल एनालिसिस बेसिकली होता ही है कि आप चीज़ों को टाइम के साथ एनालाइज करते हो। लेट्स से अगर आपके पास 100 रुपी आज के डे में है, तो वो आई गेस 2 साल बाद कितने हो जाएंगे। सो इट्स बेसिकली कंपाउंडिंग फैक्टर कि आप कंपाउंड कर रहे हो उसको, और उसका जो भी वैल्यू होने वाली है आगे 10-20 ईयर्स में। तो ये बहुत ही बेसिक सा पॉइंट है कि आप अगर कभी एनालिसिस करोगे चीज़ों को कि आपने टाइम वैल्यू एनालिसिस कर रखा है चीज़ों को, तो आप कंपैरेटिव स्टडी कर पाओगे कि मैंने जो अभी सीखा है या मैंने जो अभी करा है या मेरे पास जितना भी इन्वेस्टमेंट है बेसिकली, तो वो टाइम के साथ आगे कितना हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे आपको टॉपिक्स पढ़ने मिलेंगे अपने एमबीए में,
तो वो चीज़ आपको बहुत काम आएगी आपकी लाइफ में भी आगे और आपके किसी स्टार्टअप में भी आगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं एमबीए में कुछ रखा नहीं है, मैं चाय सुट्टा बार खोल लूँ एंड एवरीथिंग, तो आपको मैं पहले बता दूं कि चाय सुट्टा बार खोलने के लिए भी आपको एक ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन एनालिसिस करना पड़ता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो आप अपने एमबीए में पढ़ोगे और वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगी, तो उनको आई आपको थिंक चाय सुट्टा बार के भी जो हेड है वो हमारे एमबीए की हैं। राइट। तो Yes, ऐसे they कुछ are भी from स्टार्टअप IIMS only. आइडियाज भी होते हैं, कुछ स्टार्टअप आइडियाज भी होते हैं ना, तो उनको आपको फिगर आउट करने के लिए, बेसिकली उनके बारे में मार्केट रिसर्च करने के लिए आपको बहुत सारे जो चीज़ें हैं आपके एमबीए में मिल जाएगी। आई थिंक यू ऑल आर ब्लेस्ड कि आपको एमबीए करने मिल रहा है, तो जाएगी जितनी भी चीज़ें आप लोग सीखोगे ना, वो चीज़ें कहीं ना कहीं तो काम आ ही जाएगी। हेलो तन्वी। Any more questions? Guys, ask as many questions you want from him. Okay, so thank you so much, sir. So now let us just start our Q&A session. So I would like to call Mansi with us for starting the Q&A session. Hello everyone, I am Ansi Parmar and I would like to ask that nowadays everyone want to become an entrepreneur. So how can we kickstart our career as an entrepreneur? बेसिकली ना पहले अपने आइडिया को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आपका आइडिया है वो वर्थ इट है कि नहीं है और उसमें इतना पोटेंशियल है कि नहीं है। लेट्स से अगर आपको लगता है कि मुझे आज के डे में एक ग्रोसरी का स्टार्टअप खोलना है, आई थिंक जैसे ये है बिग बास्केट हो गया या ग्रोफर्स हो गया, तो ऐसे किसी स्टार्टअप को खोलने के लिए आपको पहले आपका मार्केट साइजिंग देखना पड़ेगा कि आप कहाँ खोलना चाहते हो ऐसे स्टार्टअप को। और उसके बाद सारे पैरामीटर्स के, आपका कस्टमर सेगमेंट कौन सा होगा, किस ग्रुप का होगा, और आप उसमें आपकी यूएसपी क्या देने वाले हो बेसिकली। अगर आपको आपकी यूएसपी नहीं पता है तो आपका वो आइडिया आप रन भी नहीं कर पाओगे बेसिकली। तो आपको आपके स्पेसिफिक आइडिया का यूएसपी पता होना चाहिए, विच इज़ यूनिक सेलिंग पॉइंट, और वो एक पैरामीटर है जिसको आप बेसिकली पिच करोगे आपके कस्टमर्स को। तो ऐसे आइडियाज को पहले आपको सेल्फ एनालाइज करना पड़ेगा कि वो आइडिया, उस आइडिया में पोटेंशियल कितना है बेसिकली, और उसके बाद आप चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पे ले सकते हो बेसिकली। तो स्टार्टअप करने के लिए ऐसा कभी नहीं होता कि आपको पता होना चाहिए कि फंडिंग कहाँ से मिलेगी, पैसा कितना लगेगा। ऑल दीज पॉइंट्स आर सेकेंडरी, पहले आपको पता होना चाहिए कि मेरे आइडिया में पोटेंशियल कितना है। तो आई थिंक यू शुड स्टार्ट की जो भी उसके बारे में रिसर्च करनी है, आपके टॉपिक के बारे में आपको आपका कस्टमर सेगमेंट फाइंड आउट करना है और उसमें पोटेंशियल कितना है ये फाइंड आउट करना है। तो ये चीज़ें पहले इंपॉर्टेंट है, पहले इसके बारे में आपको फोकस करना चाहिए, देन उसके बाद उसको आगे रन करने के लिए जो दूसरी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो पता करनी चाहिए। I would also like to request audience to just put their questions in the chat box, and they can also raise their hand to interact directly. So the now next so next question from my side is now हमारे पास बहुत सारे आइडियाज रहते हैं, but how to actually start from the beginning? Like if you are in the college, then हमारे पास ज़्यादा exposure नहीं रहता है and funding का problem रहता है. So how to actually start from the scratch? आई थिंक आप लोगों को आपके आइडियाज डिस्कस करने चाहिए पहले, आई थिंक विद योर फ्रेंड्स और मे बी अ डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट ऑल्सो। अगर आपको लगता है कि जो आपका आइडिया है वो किसी दूसरे ग्रुप को केटर करता है, तो आपको डायरेक्टली उनसे डिस्कस करना चाहिए कि डू दे रियली नीड दिस। कि कोई प्रोडक्ट है, लेट्स से अगर आपने कुछ एडवोकेट से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाया है, तो वो एडवोकेट्स लोगों को काम आएगा भी या नहीं, उनके लिए वो कितना फिजिबल है। तो यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विद डिस्कसिंग दिस आइडिया विद द स्पेसिफिक कस्टमर सेगमेंट और इनफैक्ट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, कि इस चीज़ में कितना पोटेंशियल है, पहले वो फिगर इट आउट करते हैं। उसके बाद ही आप उसके बारे में फंडिंग एंड ऑल का डिस्कस कर सकते हैं कि उसमें कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा। मुझे ये लगता है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स कम फंडिंग से भी स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब देयर इज ऑलवेज अ वे कि आप कम पैसों में स्टार्टअप कैसे क्रिएट कर सकते हो। देयर इज नो नीड टू गेट ऑल द पेपर वर्क डन फ्रॉम दिस वेरी फर्स्ट डे। आपको पहले आपके आइडिया को एक ट्रायल रन देना चाहिए कि वो अगर सक्सेसफुल होता है तो यू कैन जस्ट स्टार्ट ऑल द पेपर वर्क एंड फॉर्मलाइजिंग एवरीथिंग, और उसके बाद आप उस स्टार्टअप को वर्कआउट कर सकते हो। तो किसी भी स्टार्टअप में बेसिकली फंडिंग को आप हमेशा सेकेंडरी में रखो, पहले उस आइडिया को डिस्कस करो विद अदर पीपल और मोस्टली विद द स्पेसिफिक कस्टमर सेगमेंट। अगर आपको लगता है कि आपका कुछ
ई कॉमर्स से रिलेटेड स्टार्टअप होना चाहिए। तो वो ई कॉमर्स का जो आपका स्टार्टअप आइडिया है उसका कस्टमर सेगमेंट कौन होगा, और उससे डायरेक्टली डिस्कस करो आपकी वो चीज़ कैसे पॉसिबल हो सकती है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप आर B2C बेसिस ओनली, तो B2C बेसिस में आपको कस्टमर्स आपके आसपास मिल ही जाएंगे। अगर आप ऐसा कुछ सोचेंगे कि मुझे एजुकेशन बेस का स्टार्टअप क्रिएट करना है, तो वो जो एजुकेशन का कस्टमर होने वाला है, लेट्स से इट्स अ प्राइमरी किड और अ सेकेंडरी किड और मे बी अ ट्यूशन क्लासेस और मे बी अ MBA और कैट एस्पिरेंट्स, सो आप डायरेक्टली उनसे पूछ सकते हो कि वो चीज़ें उनको कितनी काम आने वाली है। अगर इफ़ यू वांट टू ऑफर अ टेस्ट सीरीज ऑनलाइन बेसिस, सो यू कैन जस्ट आस्क कि आप लोगों को ये टेस्ट सीरीज अगर मैं ऑफर करता हूँ तो आपको वो चीज़ कितनी फिजिबल होंगी, ऐसा होता तो आपको वो चीज़ काम आती या नहीं। तो अगर ऐसा होता, ये जो डिस्कशन है बेसिकली ये आपको बहुत सारी चीज़ों में काम आएगा कि आपने जो भी फिगर आउट किया है, सारे प्रोस एंड कॉन्स आपके आइडिया के फर्स्ट लेवल पे ही क्लियर हो जाएंगे। तो वो आपको भी पता होगा कि जो चीज़ आपने सोची नहीं थी वो चीज़ उतनी फिजिबल है या नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग से ही। Amol, I'm with how thinking many people ahead. did you start? With how many So people did you start your company? मी एंड माई पार्टनर, सो मेरी जो पार्टनर है हनी, हम लोगों ने अराउंड 6 मंथ्स अकेले ही काम किया, डे नाइट बेसिस पे। हमने जब अपनी कंपनी स्टार्ट की तो वी नीड टू मेक सम मार्केट कोलेट्रल्स और वेरियस प्रपोजल्स टू क्लाइंट्स। सो हमने वो आई थिंक शुरू के 6 महीने तो अराउंड 10-12 आवर्स अ डे वर्क किया है, नॉट इवन 7 days अ वीक, और हर छुट्टी के दिन काम किया, बैक टू बैक बहुत सारे प्रपोजल्स क्रिएट किए। तब जाके अराउंड 6 और 7 मंथ्स के बाद मुझे पहला क्लाइंट था जिसने हाँ मतलब बोला कि वील वर्क टुगेदर और आप हमारे लिए स्टडी क्रिएट करो एंड ऑल। तो इट वाज अ वेरी टीडियस सर, हम 2 लोग ही थे स्टार्टिंग में। फिर देन हमने जब हमारी फर्स्ट रिपोर्ट सेल हुई तो उसके बाद हमने अपने इंटर्न्स हायर किए। बेसिकली उस रिपोर्ट में भी प्रॉफिट तो कुछ हुआ नहीं, बट दैट वाज अ फर्स्ट स्टार्ट। तो उसके बाद हमने अपने इंटर्न्स हायर किए थे अपने उस टाइम पे ही, और उसके साथ हमने वर्क स्टार्ट किया था। So we were 2 people, and then we hired 3 interns, and then we moved out from a co-working place to a rented place. उसके बाद हमारे पास अराउंड कुछ 7 or 8 people हो चुके थे from 2017 to 18, and then 18 के बाद we had a new place, वहाँ पे हमारे कुछ 15 employee थे, और in this year in 2020 we have shifted to Atul IT Park, and around 20 people are working with our company. So you have now purchased an office in Atul IT Park, right? Right. Any more questions? I think किसी का chat में आया Taking था। ahead the I like your Sir, what just the points should we consider while doing market research? market research on what topic? अगर आपको बस कोई आइडिया है तो you can discuss it right now कि किस टॉपिक पे आपको डिस्कस करना है या मार्केट रिसर्च करनी है। No, sir, as a general point of view, what points See, should market we? research is basically of two type: primary research and secondary research. Primary research में basically directly ask the customer segment or people from all around you कि जो चीज़ें आप जैसा आप cater करना चाहते हो वो चीज़ possible है या नहीं, या कुछ उनकी requirements होगी, कुछ उनके inputs होंगे। So it's a primary research. Or secondary research, basically you take all the facts and information available with different internet sources basically. अगर आपको पता है कि इंडिया में सॉफ्ट ड्रिंक का मार्केट साइज कितना है तो आप वो चीज़ ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो। तो देर आर वेबसाइट्स अवेलेबल विद डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा सोर्सेज। तो ये इनसे जो डेटा मिलता है दैट इज सेकेंडरी। अगर आप डायरेक्टली कस्टमर से इंटरेक्ट करते हो दैट इज प्राइमरी। सो दीज आर टू बेसिक points of a market research. That is what we do. We usually work with people from primary research. मेरे जो clients होते हैं वो मुझे उनके inputs directly देते हैं कि what we assume and what we think the market size is this, और उसके बाद we start working कि हाँ अगर market size इतना है according to you, so we'll give you some data points and figure parameters की let's say India में इन चीज़ का market size actual में इतना है and what we have figured out with level with all the primary research ground level पे जो हम करते हैं। Sir, I want to ask that how can we start our startup as a profession? As a profession or as a passion? You don't start your startup as a profession only. You should start your startup as a passion. क्योंकि स्टार्टअप में कभी भी आपको ऐसा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का गारंटी और श्योरिटी नहीं मिलने वाली है। आपको आपका आइडिया को पैशन के साथ शुरू करना चाहिए।
But how can they start our startup? If I have an idea, then how can we start it? So you can just discuss with this first, and then उसमें requirement क्या क्या लगने वाली है, आप उन चीज़ों को figure out करो. उसके बाद हर एक पॉइंट को एज अ चेकलिस्ट यूज करो. इफ यू वांट फंड ऑफ अराउंड 1 लाख और 2 लाख, तो वो कहाँ से पॉसिबल हो सकता है उसको पता करो. देयर आर मेनी वेज टू गेट अ फंड. अगर आपको बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी चाहिए तो यू कैन ऑलवेज आस्क योर पेरेंट्स और कलीग और ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की लेट्स इन्वेस्ट दिस मच अमाउंट ऑफ मनी इन दिस स्टार्टअप. तो आइडियाज बहुत सारे हो सकते हैं फंड क्रिएट करने के, अगर आपका छोटा आइडिया है तो. And if you have an idea which needs crores of money and everything, so that is very different altogether thing. तो उसके लिए आपको पूरा पिच डेक क्रिएट करनी होती है. आई थिंक उसका एक ड्राई रन भी आपको किसी को शो करना होता है. तो जब इन्वेस्टर मीट होती है यूजुअली, अपने एमपी गवर्नमेंट ने भी शायद आजकल ऑफर कर रखा है इन्वेस्टर मीट्स का और वीसी से मिलने का. बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स के उनके भी सेमिनार्स होते रहते हैं. तो अगर आप डायरेक्टली वहाँ पे पिच कर सको आपका आइडिया कि दैट इज व्हाट आई वांट टू डू और उसमें इतना अमाउंट लगने वाला है, तो वो चीज़ें आप वहाँ पे पिच कर सकते हो. बट अदरवाइज अगर आपका बहुत छोटी फंड की रिक्वायरमेंट है तो यू कैन जस्ट आस्क योर पेरेंट्स और फ्रेंड्स और एनीवन अराउंड यू just to invest your own idea. As you said, discussing our idea, but it is also comes with the threat of stealing of our idea. So how can we manage it? यार वो स्टोलिंग का जो फैक्ट है दैट इज ऑलवेज अ रिस्की फैक्टर. मतलब मुझे भी लगता था हमेशा कि मैं अगर डिस्कस नहीं करूंगा, मतलब डिस्कस करूंगा और हो सकता है वो कोई मेरा आइडिया आई थिंक चोरी कर ले एंड ऑल. बट स्टिल यू हैव टू डिस्कस विद सम ऑफ योर रिलायबल फ्रेंड्स और मे बी कलीग और एनीवन. क्योंकि डिस्कस अगर आपने खुद से नहीं किया एंड इफ यू वांट जस्ट टू टेक ऑल द डॉक्यूमेंटेशन बिफोर और उसके बाद अगर पता चला कि दैट इज आइडिया इज नॉट वर्थ इट, तो वो जो आपने स्टार्टिंग में पेपर वर्क एंड जो भी ट्रेडमार्क एंड ऑल लिया कुछ भी करा, तो दैट विल ऑल बी वेस्टेड. तो यू शुड ऑलवेज डिस्कस विद योर रिलायबल फ्रेंड्स आल्सो कि इसमें मैंने ऐसा सोचा है. सो यू कैन वी कैन जस्ट वर्क टुगेदर ना. मतलब अगर आपको लगता है कि सामने वाला भी इंटरेस्टेड, तो यू कैन जस्ट आस्क देम टू वर्क टुगेदर एज अ को-फाउंडर. So now we have a bunch of questions from the audience side. So I'm going to read them. Yeah. Anamika is asking that, sir, I like you asked that what is the perfect starting fund for startup? What is the perfect? Perfect or starting fund for startup? She means the perfect size of a fund for starting a startup. Yeah, initial amount for the startup. She wants to know the initial fund she requires for any startup. For most of startups now it requires only zero amount of money. मतलब अगर आपके पास अगर आइडिया ऐसा है which can be let's say ई-कॉमर्स स्टार्टअप है, अगर आपको कुछ करना है तो ई-कॉमर्स स्टार्टअप के लिए यू नीड अ वेबसाइट ओनली. तो वो वेबसाइट के लिए आपके पास इतने सारे सोर्सेस अवेलेबल हैं कि दैट इज ऑलमोस्ट जीरो. यू डोंट नीड एनी मनी टू इन्वेस्ट टू क्रिएट अ वेबसाइट. हाँ, अगर आपका कुछ आइडिया आपका एआई से रिलेटेड है और मे बी इट नीड्स अ फिजिकल प्लेस और फिजिकल स्टोर or maybe an outlet, ऐसा कोई स्टार्टअप है तो that will take money. So it depends upon your idea only कि अगर आपको जो भी चीज़ें करनी है उसमें कितना फंड लगने वाला है. और you should always start with a less amount of money. So if you are asking कि एक minimum amount required to all the paperwork done and all the things to be formalized, so it takes around 20,000 I guess. मुझे तो 3 साल पहले इतना ही लगा था. बट या इट डिपेंड्स अपॉन योर आइडिया ओनली कि आपका आइडिया है क्या और उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. And the next question is from Aman Patel. So he is asking that, sir, what are some of the mistakes we have to avoid when we start our startup? सो बेसिकली सबसे बड़ी मिस्टेक जो यूजुअली हर कोई स्टार्ट करने से पहले करता है कि एवरीबॉडी नीड्स कि सारी चीज़ें प्रॉपर हो एंड दे नीड्स ऑल द पेपर वर्क टू बी डन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे. अगर मुझे एक स्टार्टअप का आइडिया भी है कि आई जस्ट वांट टू सेल एग्स ऑनलाइन, अगर किसी का ऐसा स्टार्टअप भी है कि मुझे अगर एग्स ऑनलाइन सेल करने हैं, तो मैं सबसे पहले जाके पेपर वर्क कंप्लीट करूँ. ऑल द काइंड ऑफ कंपनी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन,
ट्रेडमार्क एंड एवरीथिंग। तो ये चीज़ें वो जो वेरी फर्स्ट डे से करने की हर किसी की ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे वो चीज़ करनी है। तो आई थिंक कि दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। ये एक हमेशा गलती लास्ट में प्रूफ होती है कि आपने फर्स्ट डे से ही सारी चीज़ें कर रखी है कि मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी चाहिए, मुझे ट्रेडमार्क भी चाहिए एंड देन मुझे कंपनी रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो ये सारी चीज़ें फर्स्ट डे से करने से होता ये है कि आप उन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो जो आपका बेसिक आइडिया था कि आई जस्ट वांट टू सेल एग्स ऑनलाइन यूजिंग दिस वेरी यूएसपी के मेरे ऑर्गेनिक एग्स हैं या मेरे, तो आपको उनको प्रमोट करना चाहिए और आपको डायरेक्टली कस्टमर से इंटरेक्ट करना चाहिए, ना कि इन्वॉल्व इन दिस पेपर वर्क थिंग। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आई थिंक आपको हमेशा फंडिंग के पीछे भी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि फंडिंग इज बेसिकली अ वेरी फैसिनेटिंग थिंग। आप लोगों को न्यूज़ में बहुत सुनने मिलता होगा कि इस कंपनी को इतना फंड मिला, इनको इतना फंड मिला। तो किसी भी तरीके की फंडिंग ना किसी भी ग्राउंड लेवल पे नहीं मिलती, किसी को भी नहीं मिलती है। स्क्रैच से करने के लिए कोई भी कंपनी आपको फंड नहीं करने वाली है। तो यू शुड ऑलवेज फोकस कि वो चीज़ कैसे रन हो सकती है। आपको हमेशा एक ड्राई रन दिखाने के लिए होना चाहिए कि मैंने एक प्रोडक्ट बनाया तो वो इतना सेल हुआ जस्ट इन दिस मच अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन दिस मच ऑफ डेज। अगर किसी की कोई सेलिंग का स्टार्टअप है और उसको कुछ दिखाना है कि मैंने लास्ट के 3 मंथ्स में इतना सेल किया एंड ऑल, तो जब कोई ऐसे पॉइंट्स शो कर पाता है किसी आई थिंक वीसी को या पिच डेक में या मे बी बैंक्स को भी अगर आपको लोन लेना है, तो आई थिंक दे नीड अ पिच डेक कि आपने टोटल इतना अमाउंट इतना इतने दिनों में इतना इन्वेस्टमेंट था आपका और आपने इतना प्रॉफिट गेन किया है। तो वो चीज़ें आपको दिखाने के लिए होनी चाहिए कि दैट इज़ द कोलेटरल फॉर देम। क्योंकि आपके स्टार्टअप के बीच में वो कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगे कि आपके कोलेटरल में आप मुझे आपकी कोई प्रॉपर्टी दो एंड ऑल ऐसा कुछ। तो आपको हमेशा आपके स्टार्टअप का जो भी ड्राई रन का एग्जांपल है वो शो करना पड़ता है और उनके लिए कोलेटरल हमेशा वही होता है। तो फंडिंग के लिए हमेशा ट्राई टू स्टार्ट विथ अ मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट और व्हिच यू कैन ऑल गेट बाय योरसेल्फ। दैट्स द मिस्टेक आई थिंक। ये 2 पॉइंट है जो आपको अवॉइड करने चाहिए। I hope, Aman, your doubts are clear. So, moving with the next question. The question is from Harsh. So, he's asking that, sir, any difference between market analyst and survey researcher? See, market analyst is basically the person who is working into industry. वो दोनों टाइप की रिसर्च में इन्वॉल्व हो सकता है, प्राइमरी रिसर्च सेकेंडरी रिसर्च। बट सर्वे रिसर्चर इज बेसिकली अ प्राइमरी पर्सन हु वर्क्स इन द फील्ड। वो डेटा कलेक्ट करता है बहुत सारे पॉइंट से, नोट से कि लेट्स से एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है और उसको डेटा चाहिए फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट वुमेन ग्रुप, बेसिकली डिफरेंट पार्लर्स हो सकते हैं, मे बी स्कूल हो सकता है विच इज गर्ल्स स्कूल ओनली। और ऐसे ऐसे पॉइंट्स पे जो वो जिन भी पर्सन को बिठाते हैं दैट इज फील्ड रिसर्चर ओनली। तो वो प्राइमरी पॉइंट पे काम करता है। सो दैट्स अ ओनली डिफरेंस बिटवीन मार्केट एनालिस्ट एंड सर्वे रिसर्चर। And again, so the next question is, in your case, how you managed to get funds to make your business running in initial stages? एज आई सेड मेरे पास कुछ अराउंड 60-70 थाउजेंड थे। उनसे ही मैंने अपने शुरू के 6 मंथ्स 6 मंथ्स निकाले एंड देन अराउंड 20,000 आई स्पेंट ऑन द वेबसाइट और एज वेल एज होस्टिंग। उसके बाद आई डोंट थिंक आई मुझे कोई एक्स्ट्रा अमाउंट चाहिए था। व्हाट आई जस्ट नीडेड कि एक ईमेल सोर्स मिल जाए। दैट्स हाउ आई कैन जस्ट प्रमोट माय रिसर्च रिपोर्ट्स एंड टू इंटरेक्ट विद ऑल द एग्जिस्टिंग सेलर एज वेल एज रीसेलर्स। तो मुझे जो चाहिए था दैट केम अराउंड इन 20,000 ओनली। And the next question is from Rupesh. So he's asking that, is it good to do a job and get experience and then start a startup? इट्स ऑलवेज गुड टू डू अ जॉब एंड गेट एक्सपीरियंस एंड देन ओपनिंग अ स्टार्टअप। ये मेरे साथ भी हुआ है। मैंने अराउंड 17 मंथ्स ऑफ आई हैव अ 17 मंथ्स ऑफ एक्सपीरियंस इन जॉब आल्सो। मेरे एमबीए के बाद मैंने कुछ 10-12 महीने इंदौर में जॉब की, अराउंड 6 और 7 मंथ्स इन पुणे। एंड आफ्टर this only I find out ki that now I know enough about this industry or I should start my own. So that's why I just did the job and then opened a startup.
Thank you, sir. So now the next question is from my side only. So Yeah. now, as we all know that there's a lot of competition in the market. So how you deal with it? Competition in terms of? Competition in terms of like others also have some kind of similar ideas to what we have. Right. So what we do ना, मेरी industry भी is not a very unique. मतलब जो मैंने काम शुरू किया, that is very common and uh, very readily available with all the players. If you know the company name McKinsey and Frost and Sullivan and then Grandview Research and then Markets and Markets. So all these companies are working in the same industry. वो सभी primary research करते हैं, वो सभी secondary research करते हैं. But you'll always have to understand कि जो market sizing है, what I needed to understand कि जो potential है मेरे product का, मेरी industry का, that is very huge. मतलब even if there are hundreds of people working on the same industry, there is always a scope for a new company to work upon this product also. क्योंकि let's say अगर मैं आपका अपना एग्जांपल बताऊं तो जो मेरी मार्केट रिसर्च इंडस्ट्री है that is around $4 or $5 billion in a year of revenue. और जो existing players हैं they cater around 1.2 to 1.7 billion dollars of revenue. So there is still a gap between the requirement and the demand. So what I needed to understand is कि हाँ demand अभी भी ज़्यादा है, that is why I can cater in the industry for another 10-20 years. So it was a very you know technical term to understand for me कि there is a difference gap. वो मैंने एनालाइज किया, then I started my company. So competition would be always there. आपको ये देखना पड़ेगा कि जो भी आपका साइजिंग है, मार्केट साइजिंग और जो पोटेंशियल है वो कितना है. I think you'll understand. Uh, Yes, sir. Thank you, sir. Okay. the next question from my side, that entrepreneur and risk is come hand in hand. So how can Right. we do risk assessment or risk management while starting a startup? See, risk assessment you can always do is like what you're already getting in a job or uh, what you can get from a different, doing a different job. So assessment करने के लिए you just need to compare all the things कि let's say if you have a job of around 40 or 50,000 in a month and then now you wanted to open a startup. So you'll have to understand कि हाँ 40-50,000 into 12 I'm getting in a year और मेरे स्टार्टअप से मुझे कितना मिलने वाला है और कितना मिल सकता है. सी स्टार्टिंग हमेशा स्मॉल अमाउंट से होने वाली है आपके स्टार्टअप से, तो आपको ये नहीं देखना चाहिए कि अगर आप जॉब से भी कंपेयर कर रहे हो तो इट्स अराउंड 10 or 12 लाख ऑफ पैकेज अगर आपको जॉब में मिल रहा है तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि मेरे स्टार्टअप का पोटेंशियल कितना है. इफ यू कैन सी कि मेरे स्टार्टअप का पोटेंशियल अराउंड करोड़ में है, मैं आई थिंक इसमें जो भी आपका आइडिया है वो अगर उसमें इतना पोटेंशियल है कि वो करोड़ में भी जा सकता है, तो यू शुड ऑलवेज कंपेयर ऑल द अपॉर्चुनिस्टिक कॉस्ट ऑफ योर जॉब वर्सेस योर स्टार्टअप. ऐसे एनालिसिस करके यू कैन जस्ट फिगर आउट कि हाँ मेरी जॉब है, आई शुड स्टिक इनटू इट और मुझे वो छोड़नी चाहिए. तो ये ऐसे पॉइंट्स आपको उसके कंपेटिटिव स्टडी के बाद ही समझ में आ पाएंगे. और आई थिंक रिस्क मैनेजमेंट के लिए यू शुड डू इज यू शुड ऑलवेज सेव योर मनी फॉर योर प्राइमरी नीड्स बेसिकली. अगर आप घर से बाहर रहते हो और आपको रेंट एंड ऑल पे करना होता है तो यू शुड ऑलवेज कीप अ बैकअप ऑफ अराउंड 6 or 8 months कि एटलीस्ट इतना पैसा होना चाहिए. देन यू कैन, अगर इतना पैसा आपने सेव कर रखा है तो उसके बाद यू कैन ऑलवेज स्टार्ट योर स्टार्टअप जॉब छोड़ के, क्योंकि नाउ यू हैव द आइडिया, यू हैव एवरीथिंग एंड यू हैव ऑलरेडी सेव्ड फॉर योर 6 or 8 months. तो विच इज गुड इनफ. इतने में आपका आइडिया आप स्टार्ट कर सकते हो. इज इट डन, मानसी? Yes, sir, clear. Okay. So one more question from my side. Yeah. So I would like to ask that if you can go in the past, then what is the advice you would give to yourself while starting the initial phase of your startup? सी अगर मैं टाइम में पीछे जाके खुद को कुछ एक्सप्लेन कर पाता तो दैट वुड बी वन थिंग कि I should have invested more into markets and mutual funds itself, because I have done MBA in finance. So after doing this MBA in finance, I find out कि there was a huge gap between investments and savings from years ago. Basically अगर मुझे मेरे ग्रेजुएशन या उसके पहले भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज होता फॉर म्यूचुअल फंड्स एंड फॉर
दिस शेयर मार्केट ओनली, तो मैं तब कुछ ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुका होता और व्हाट आई हैव राइट नाउ वुड बी मच बिगर अगर मैंने वैसा कर रखा होता तो। सो इन टर्म्स ऑफ ऑल द फाइनेंशियल नॉलेज दैट आई हैव नाउ, मुझे लगता है कि ये चीज़ें मुझे पहले पता होनी चाहिए थी। I guess you all should, think about this, your financial dependency and all your requirements and what kind of money you are saving, even in terms of, pocket money. If you all are saving some amount in your bank or uh, anywhere in your, in just, even just cash only. So you should always think about this key. You should always keep some of your investment, some of your money into investment. Even if it's a small amount, let's say 500 or 1000 in a month, you can just save. So you should always go for a mutual fund also. I guess Sohail would also agree कि अगर हमें पहले पता होता कि मार्केट एंड शेयर मार्केट एंड म्यूचुअल फंड्स अगर इतना एक्टिव है, इसमें इतना अर्न हो सकता है, गेन हो सकता है, तो वी हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड मच मोर इन अवर प्रीवियस ईयर्स, राइट सोहेल? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. I guess Sohail is not there. Yes, tell me. There was some network issue. Yes. Okay. Okay. Yes. Tell me. तो सोहेल, I was Sir, saying कि but अगर हमें पहले पता होता कि how the share market works and how the mutual fund works, or we should have invested right. So Right. this We should is have what we all invested have. really good. See, there Right. is an example, Amol. I think you would know that in 2007, अगर आपने रॉयल एनफील्ड बुलेट खरीदने के बजाय उसकी कंपनी के शेयर खरीदे होते, दैट वाज आइशर, आई थिंक, राइट, फोर्स मोटर्स। Right. तो अगर Right. आपने 2007 में आइशर के शेयर खरीदे होते बुलेट खरीदने की जगह, तो आज आपके पास इतने पैसे होते कि आप रोल्स रॉयस खरीद सकते, Right. और खैर उतना पीछे भी क्योंकि नहीं, वो let's say 70,000 2007 में रुपीज तो, आज 7 करोड़ रुपए बन चुके हैं। ओह ग्रेट। वैसे टाइम में अगर इतना पीछे नहीं भी जाना, लेट्स से अगर 3-4 years बैक भी थोड़े म्यूचुअल फंड में ज्यादा इन्वेस्ट कर रखे होते, सो वी Right. वुड हैव अ फेयर अमाउंट ऑफ मनी अभी अपने हाथों में कि वी हैव इन्वेस्टेड मच मोर इन डिफरेंट प्रोडक्ट्स, और कुछ और होता हमारे पास एक्स्ट्रा। राइट। जैसे लॉकडाउन से पहले अगर हमें पता होता कि फार्मेसी के स्टॉक्स पे इतना इफेक्ट आएगा लॉकडाउन की वजह से और वैक्सीन की वजह से, तो 6 महीने में भी वी कुड हैव डबल्ड मनी इन सम ऑफ द स्टॉक्स। सी ये तो बस बेसिकली अपॉर्चुनिटी वाला हो गया कि इसमें अपॉर्चुनिटीज थी और Right. वो हमसे मिस हो गई, बट इवन इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल सेविंग्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ही किया होता है। आई गेस मेरे इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में मैंने अगर इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर रखी होती, so it would be a basic 1,000 रुपये a month, और मैंने तब से अगर कर रखा होता तो that would be around 20-30 lakhs from for now, maybe, could be. So Right. even just a small amount of saving in a mutual fund would be a different thing, I guess 4 or 5 years later. So even you all should invest in some amount of money in your basic mutual funds, or you all should study about all the mutual fund products or everything, जो भी शेयर मार्केट है, म्यूचुअल फंड्स है, सेविंग के और भी जो तरीके हैं, you should work upon all this financials for yourself only. Yes, that's what I tell them कि अगर आप फर्स्ट ईयर में तो ये मत सोचो कि मेरे पास अभी एक पूरा एक साल बचा हुआ है, मैं नेक्स्ट ईयर से अपने करियर की प्लानिंग करूंगा। That should start their career planning from the first sem only. करियर प्लानिंग तो यू शुड ऑलवेज आपको हमेशा सोचते रहना चाहिए बेसिकली कि आपके करियर में को करना क्या है। यू शुड नॉट बी डिसाइडिंग कि हाँ मुझे फर्स्ट ईयर में पता होना चाहिए कि मुझे एमबीए के बाद क्या करना है, बट आपको ऑलवेज सोचते रहना चाहिए कि बेसिकली मेरे पास ये ऑप्शंस हैं या मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ, या इफ़ यू हैव आइडिया ऑलरेडी कि मुझे ये चीज़ करनी है फॉर अ स्टार्टअप, सो उसमें क्या क्या चीज़ें लगने वाली है और उसकी रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल होगी, इफ़ इट नीड्स 4 or 5 लाख तो वो कहाँ से आएंगे, इन सब चीज़ों पर आपको सोचते रहना चाहिए आई थिंक, और भी कंटिन्यूअसली, और you should also discuss your idea with different people also, maybe your mentor or your friend, your colleague, your parents, सबसे डिस्कस करते रहोगे तो you will get the feedback for your idea कि बेसिकली वो उसमें इतना प्रॉफिट है या नहीं, वो इतना अच्छे से रन करेगा या नहीं, या there could be a better option available, you should do this only। तो ऐसी चीजें आपको आप डिस्कस करोगे तो ही पता चलेगी। तो यू शुड नॉट कीप
योर आइडिया टू योरसेल्फ कि हाँ बस मुझे पता है कि ये करना है, बट अब मैं वो एमबीए की बात करना शुरू करूंगा तो मैं तब सोचूंगा. दिस इज नॉट अ राइट वे. आपको उसके बारे में भी सोचते रहना चाहिए, डिस्कस करते रहना चाहिए. आपका फर्स्ट ईयर इज बेसिकली टू डिस्कस विथ योर पीपल स्क्रैच से, कि आपको अगर पता है कि मेरे पास अभी 2 साल हैं टू डिस्कस अबाउट ओनली, मुझे अभी कुछ शुरू भी नहीं करना, तो आप 2 साल प्रॉपर डिस्कस कर सकते हो. सारे प्रोस एंड कॉन की लिस्ट बना सकते हो, आपकी रिक्वायरमेंट की लिस्ट बना सकते हो, एक चेकलिस्ट क्रिएट कर सकते हो कि ये चीज़ें मुझे चाहिए होंगी टू ओपन दिस और टू स्टार्ट दिस. तो वो चीज़ें आप पहले से फिगर आउट करके उन पे वर्क कर सकते हो. तो इट्स अ फेयर अमाउंट ऑफ टाइम. 2 साल में आप बहुत कुछ कर सकते हो फिर वैसे. One more question from my side, that what is the thing which excites you most about entrepreneurship? बेसिकली टू बी माई ओन बॉस. मतलब मुझे किसी को आंसर नहीं करना, बट इट हैज़ वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज. मतलब स्टार्टिंग में जब मेरा फर्स्ट ऑफिस हमने रेंट आउट किया था, तो आई वॉज माई ओन बॉस. मुझे मुझे पता था कि मुझे किसको आंसर करना नहीं है, बट देयर वर सो मेनी थिंग्स टू डू, लाइक शिफ्टिंग इन अ न्यू ऑफिस. वहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिफिकेशन के काम से लेकर कुछ छोटे छोटे काम कभी कभी निकल के आते थे कि लेट्स से इंटरनेट केबल इज ब्रोकन, तो मुझे वो तुरंत ठीक करनी पड़ेगी. अदरवाइज देयर वाज सो मेनी इश्यूज कि मेरे सारे ईमेल्स रुक जाएंगे, मेरी सारी फाइल्स जो है वो रुक जाएगी सेंड होना, एवरीथिंग. तो वो छोटे छोटे कामों से लेके मैंने जो भी सारे काम किए हैं अभी तक, इवन इफ वी आर शिफ्टेड इन न्यू ऑफिस ना, तो अभी इस नए ऑफिस में भी इंटरनेट की केबल्स को लेकर जो सारे काम होते हैं या कुछ भी विच इज नॉट माई टास्क, मतलब वो मेरा स्टार्टअप का कुछ किसी पार्ट से रिलेटेड है नहीं, एंड आई कैन ऑलवेज ask for someone कि you can just please come and do and fix this and everything. But वो जो चीज़ें मैं खुद से करता हूँ ना, that makes me very proud and passionate about my idea. मैंने जो चीज़ें स्टार्ट करी है मैं उसको जहाँ लाके अभी मैं रन कर रहा हूँ, तो उसमें जो बहुत सारे छोटे से छोटे और जो बड़े से बड़े काम करने होते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा फैसिनेटिंग फील होता है अभी भी, और that makes me proud. Okay, thank you, sir. Okay. Thank you, sir. That was really helpful. So we have some more questions from the audience. So, Yeah. so one question is, sir, what about risk in share market? How we know that this stock will give us profit in future? सी, ये तो पूरा टॉपिक ही डिफरेंट है. इवन इफ यू टॉक अबाउट शेयर मार्केट में ना, तो स्टॉक्स बेसिकली 2-3 कैटेगरी के होते हैं. दैट इज टियर 1 स्टॉक, दैट वी ऑलरेडी नो कि लार्ज मार्केट कैप वाले हैं, दैट हैव अ वेरी गुड, वेरी पॉजिटिव गुडविल इन द मार्केट, और काफ़ी टाइम से उनका रन है, और वो बेसिकली बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट है. तो दे वुड नॉट हैव अ वेरी एक्सपोनेंशियल रिटर्न सेफ रिटर्न. अगर आप अभी भी इन्फोसिस में इन्वेस्ट करते हो, लेट्स से रिलायंस में इन्वेस्ट करते हो, टाटा के कमर्शियल मोटर्स में व्हीकल इन्वेस्ट करते हो, तो जो ऐसे शेयर्स होते हैं दैट आर कंपेरेटिवली सेफर देन ऑल द अदर्स दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट. सो आपको ऐसे स्टडी करना चाहिए शेयर मार्केट के जो भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उसमें, कि किस कंपनी के शेयर को पिछले अराउंड 5 और 10 ईयर्स में कैसा रिकॉर्ड रहा है, प्लस कंपनी की गुडविल कितनी है. तो इन पैरामीटर्स पे आप किसी भी शेयर को एनालाइज कर सकते हो. और शेयर मार्केट इज आई जस्ट सेड वन मोर थिंग कि शेयर मार्केट ज़्यादा रिस्की है. सो अगर कोई स्टार्ट करना चाहता हो इन्वेस्टमेंट्स, तो ही शुड ऑलवेज स्टार्ट विथ म्यूचुअल फंड्स ओनली. दैट इज़ वेरी सेफ. एंड वो बना ही इसलिए है, जिनको शेयर मार्केट के तो नॉलेज नहीं होता, तो उनको दे शुड इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, कि हाँ वो वहाँ से अपनी चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं, सेविंग स्टार्ट कर सकते हैं, और दैट वुड गिव हिम अ बेटर और सेफ रिटर्न. So mutual funds is always a good option. I hope, Rupesh, your doubts are clear. So now the next question which we have is, do you invest in stocks or real estate? I've invested in both. Stocks में तो I think 2015 से invest कर रहा हूँ. Real estate में recently I've invested. I just purchased a flat in Indore, and I've already bought a plot in this MR10 road. So it's a very, investment and saving is very diversified thing. You should not invest everything in share market or everything in mutual fund. So you should always diversify all your investment in different verticals.
उससे होगा क्या कि आपका इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा सेफ रहेगा एंड दैट वुड हैव अगर लेट्स से रियल एस्टेट में कभी बहुत ज़्यादा बूम आता है तो दैट विल गिव यू मोर बेनिफिट, और लेट्स से अगर उसमें कुछ डिक्लाइन भी आता है तो दैट वुड बी अ सेफर रिटर्न मे बी इन लेटर ईयर्स, और मीनवाइल यू विल हैव योर म्यूचुअल फंड्स और शेयर मार्केट रनिंग, सो उनसे आप आपका प्रॉफिट गेन कर सकते हो. तो यू शुड ऑलवेज डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट. I The last guess. question from my side is, Yeah. were you had your family support while starting your journey as an entrepreneur? Hmm. Sorry, I didn't get you. Were you had your family support while starting your journey as an entrepreneur? Frankly speaking, मुझे तो नहीं मिला because my family is very conservative. Everybody is into government job and everything. तो आई थिंक शुरू के 2 साल तो मुझे सपोर्ट ऐसे था कि हाँ जब तक करना हो कर लो, एंड देन फिगर इट आउट कि नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब कैसे मिल सकती है और ऑल द बैंकिंग एग्जाम्स एंड एवरीथिंग. तो स्टार्टिंग फ्रॉम 2017 एंड 18 ये डिस्कशन बहुत होता था हमारे घर में कि ठीक है स्टार्टअप तो कर लिया, ठीक ठाक चल रहा है, बट अभी आगे क्या, कोई जॉब ढूंढनी है, कोई जॉब करनी है या नहीं. सो मैं हमेशा बोलता था कि नहीं अभी भी सही चल रहा है, क्योंकि तब तक भी जो मेरी अर्निंग थी दैट्स मोर और लेस फेयर अमाउंट ऑफ की अमाउंट मुझे मिल पा रहा था पर मंथ, कि मैं अपनी सैलरी जैसे उसको शो कर सकता कि हाँ ये मेरी सैलरी जितना ही है, अराउंड 40-50,000 इन अ मंथ. तो मैं वैसे कंपेयर की ठीक है इट्स गुड अमाउंट, मैं इसमें काम चला सकता हूँ. तो वहाँ तक तो यही होता था कि हाँ अभी 2 साल कर लिया ना, अब यू शुड ऑलवेज गेट अ जॉब. तो वो चीज़ें थोड़ा सपोर्ट कम मिलता था, बट ये था कि हाँ अभी जो करना हो कर लो, बट यू शुड ऑलवेज थिंक कि हाँ अभी आगे क्या, अभी जॉब करनी है या नहीं, वैसा. तो वो काफ़ी टाइम लगा उसको, उनको ग्रैस्प करने में कि हाँ फाइनली उसको अब यही करना है और इसमें ही आगे जाना है. तो इवन आई गेस 2019 और मे बी 20th फर्स्ट जनवरी में जाके सबने ऐसा एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ अभी कोई एग्जाम्स नहीं, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं, दिस इज व्हाट ही इज गोइंग टू डू, इसमें ही अब उसको आगे अपना फ्यूचर देखना है. और आई गेस तब तक आई हैड 15 पीपल वर्किंग इन माय कंपनी, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस वो था, एक्सपोजर मिल चुका था, तो इसलिए फिर सबने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ अभी ठीक है, नाउ इट्स सेटल्ड. Okay, thank you, sir. ओके. Wow, that was really inspiring. So now the last question from my side as well. So like that so as we got to know that there were a lot of instances where you made some mistakes. So there is a particular point where we feel very demotivated. Like हमें कुछ पता ही नहीं रहता कि आगे करना क्या है. So how you kept yourself motivated through these times? सी इवन व्हेन आई स्टार्टेड माय कंपनी ना, तो शुरू के 6 महीने बहुत ही ज़्यादा ऐसे डीमोटिवेटेड ही निकले. हम लोगों ने जो काम करा दैट वाज नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ आउटपुट और फ्रूटफुल फॉर अस. सो हम बस उसमें जैसे लेट्स से ऑन अ मंडे वी आर वर्किंग फॉर अ प्रपोजल फॉर अ क्लाइंट, तो हमारा मंडे बहुत बोरिंग निकलता था. देन ट्यूसडे, थर्सडे, व्हेन इट्स कम्स टू सैटरडे हम शाम को सोचते कि यार अब ज़्यादा हो गया है, अब काफ़ी टाइम हो चुका है, वी डोंट हैव एनी मनी इन आवर हैंड, अभी आगे करना क्या. तो लाइक एक सैटरडे शाम तक हम लोग बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो जाते थे. बट उसके बाद वी ऑलवेज कंपेयर विद डिफरेंट पीपल की जो मेरे जॉब में वर्किंग लोग थे. उनका ये होता कि यार तू जॉब मतलब तू अब वापस जॉब मत ज्वाइन करना, तू अभी उसमें और टाइम दे, क्योंकि ऑलरेडी जॉब छोड़ के आने के बाद अगर तूने ये सब शुरू किया है तो शुड गिव मोर टाइम. और जो मुझे लोगों से बात करके मिलता था एक्सपीरियंस और लेट्स से मोटिवेशन, क्योंकि जो मेरे जो फ्रेंड्स थे बेसिकली उन सबका सपोर्ट बहुत था. यू शुड फोकस ऑन योर स्टार्टअप, पैसे नहीं भी आ रहे हो तो भी, या कुछ बुरा भी हो रहा हो तो भी, क्योंकि एट द एंड इट्स गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू. तो बीच बीच में जो भी सारे डीमोटिवेशन वाले पॉइंट्स आए, जितने बार मेरे मॉरल डाउन हुआ, मेरे फ्रेंड्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा कि हाँ देख हम तो जॉब में है, तू स्टार्टअप कर. तो उस बेसिस पे मुझे कहीं न कहीं सपोर्ट मिलता रहा कि हाँ, किसी ने मुझे सपोर्ट कर दिया कि हाँ, तू मतलब अभी जॉब पे मत फ़ोकस कर, अभी स्टार्टअप पे ही ध्यान दे, थोड़ा टाइम और दे. तो लोग पुश करते थे कि हाँ, अभी तो उस पे फ़ोकस करते रहे, कुछ नहीं भी हो रहा है तो भी फ़ोकस करते रहे.
एटलीस्ट गिव अ ईयर और 2 कि इसमें कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। मुझे 6 मंथ्स में इतनी बार फील होता है कि हाँ, नहीं अब ज़्यादा हो गया, आई शुड गेट अ जॉब बैक। और उस बीच में भी मुझे इतना रिग्रेट फील होता था, अगर मैं किसी दिन में डीमोटिवेटेड भी फील कर रहा हूँ तो रिग्रेट ऐसा होता था कि जो मैंने जॉब लास्ट छोड़ी, उस जॉब में मुझे 5 lakhs ऑफ बोनस मिलने वाला था। उन्होंने मुझे बोला कि अगर आप जॉब नहीं छोड़ते हो तो यू विल गेट 5 lakhs इन बोनस इन 6 मंथ्स। तो मैं उस चीज़ को छोड़कर आया था, तो मुझे वही लगता था कि यार मैंने बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी वो बोनस छोड़ के। तो हर बार मैं जितनी बार भी डीमोटिवेटेड हुआ तो मेरे फ्रेंड्स ही मुझे वापस मोटिवेट करते थे कि नहीं, मतलब वो सब जो था वो ठीक है, बट आई विल गेट यू विल गेट यू नो ऑल द थिंग्स यू लॉस्ट, जो जॉब में आपने लॉस्ट करा है वो सब मिल जाएगा वापस। तो वैसे-वैसे मैं खुद को मोटिवेट कर पाता था कि लोगों से बात करके, फ्रेंड्स से बात करके, वही मेरा मोटिवेशन फैक्टर थे। So there are some more questions from the audience. So, okay, this is a long Yeah. one. So Nishant is asking that, sir, it's getting very kind of very confusing in some seminar. Entrepreneur used to say it's very hard to reach 6, 7 digit, and in some they say it's not very hard, but it's like to be patient and keep working. So is it very hard, or we can get as per our demand of products and promotion? Can I just read it again? Nishant Jaiswal question, right? Okay. So Nishant, you can also unmute yourself for direct interaction, or Right, I'm going to Nishant, you read. can just directly ask me. Yes. Sir, is it kind of very hard, or we can just promote and get demands for our products? Because some entrepreneur used to say that it's very hard and you can take 10 to 12 years in market. So depending upon your idea ना, किसी-किसी का idea ऐसा होता है which is very contagious, you can say, or maybe a viral kind of product. If you have already known about this product of Like Cred, mass I think, nowadays. have you heard about Cred, a Yes, credit sir. card For billing payment platform? Yes. So yes, it sir. went very viral, right? उसने around एक साल में कुछ 10 billion people acquire कर लिए, 10 billion customer acquire कर लिए. So it was a very viral product. तो that is why उनको इतना customer segment बहुत easily मिल गया. Depends upon product और maybe customer segment कि आप किनको pitch करने वाले हो, वो चीज़ें आपको help out करती है कि आप कितने जल्दी वो आपका market sizing gain कर सकते हो. So it's always depend upon your product or offering. किसी-किसी चीज़ में ऐसा हो सकता है कि it will take time. How can I explain? If you know a doctor who has just recently passed out from MBBS, so उस doctor को I think to gain his patient segment or to gain his market in a, let's say, a hometown or a district, तो जिसने MBBS recently किया होता है उसे कम लोग follow करते हैं, but who has done I guess 10 or 20 years of practice, उस डॉक्टर के पास ज़्यादा भीड़ होती है. तो इट्स अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि उस चीज़ों में लोगों को ट्रस्ट बहुत धीरे-धीरे डेवलप होता है. सो दैट इज़ व्हाई इट टेक्स 10-20 इयर्स किसी डॉक्टर को एक फुल फ्लेज्डली वर्क करने में, और जिसके पास भीड़ ज़्यादा होती है. तो इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट. उस चीज़ में उसको 20 साल लगते हैं, बट in terms of ideas like Cred, it takes only 1 year to gain 10 billion people. So it depends. Nishant, am I clear? Yes, sir. It depends on our ideas only. Right. So do you Yes. have any idea? So not yet. Okay. I think we can end now, right? Any more questions? Arshita, mute yourself. Mute Arshita. All the questions are done from the audience side, and I would also like to request all to just fill the. Ishika, mute Harshita first. Okay. Tanvi, kindly mute Harshita. Yes, Ishika, you can go ahead. So now I would like to request audience to click the link
in the chat box for getting their e-certificates, and As well as for the feedback also. I have shared the yeah, feedback form link also. so you can also fill the feedback, and the link is provided in the chat box. And so thank you so much, sir, for joining us. And to Thank conclude you, our Ishita. session, I would like to thank you for joining us even after having a busy schedule. It was our pleasure to have you with us. And a big thanks to the audience for being a part of this session and making this session more interactive. Thank you to Chameli Devi Group of Institutions for helping us with organizing this session. And last but not the least, a big thank you to all the team of IFA for helping us throughout the workshop and making this session possible. So that's it from my side. And you can also follow us on different social media platforms for getting updates of such events and workshops. And that's it from my side. Have a good day. Thank you, Thank you, Amol. Ishita. Thank you for Thank the you, wonderful Sohail. session. Thank you, Sohail. Thank you so much, sir. Okay. So, bye. Bye bye, everyone.